Worthy Principal Dr. V.B. Gaikwad, KTHM College, Nasik, Maharashtra, Dr. Rajendra Gunjal, Coordinator, Faculty Development Program, Dr. Ganesh Mogal, Assistant Coordinator, Faculty Development Program, my dear friend Gorakshnath Pingle, dear Program Officers, National Service Scheme, and Student Development Officers from various colleges of state of Maharashtra and different states of and union territories of India. Very good morning to all of you. Myself, Dr. Rajiv Sharma, Program Officer NSS and Associate Professor of the Postgraduate Department of Chemistry, Multanimal Modi College, Patiala, Punjab. Friends, first of all, I would like to thank Honorable Principal Dr. V.B. Gaikwad of the KTHM College, Nasik, for giving me an opportunity to interact with you people, and especially to my friend Mr. Gorakshnath Pingle for contacting me for this talk. So I'm here to talk on the COVID-19 pandemic, stress among common man, and some techniques to be happy. Dear friends, we are in a state of stress because of the COVID-19 pandemic. And before starting my talk, before starting my talk, now, before starting my talk, I would like to share a picture on the screen with you. People are very happy, and this is the state of the listeners before the talk. So, delegates before talk. And now the people are sleeping, try to sleep, in the state of going to sleep. So, this is the state of mind of the listeners or delegates during the talk. And ultimately, when the talk is going to end, the people are really sleeping. So this is a slide showing the delegates after talk. So dear friends, I will try my best to keep you in the first stage where the delegates are very happy as they are going to listen to talk. So first of all, let me introduce my topic, that is COVID-19. COVID-19, that is coronavirus disease 2019, being caused by the coronavirus, that is COVID-2, first identified in the December 2019 in Wuhan city, Hubei province of China. Now, this disease, though started in the Hubei province of China, but it has emerged out as a pandemic. Pandemic means a disease which has spread to all parts of the world. Hindi में it's called सर्वव्यापी महामारी. Endemic. Endemic means a sthanic, or you can say a disease which is confined only to a small area like plague, typhoid, jaundice, and epidemic. Epidemic means mahamari, which is not confined to the small area but is confined to spread to the many areas of a particular, not particular country or to few countries. And another example of the pandemic is HIV, that is human immunodeficiency virus, or you can say AIDS, and the Spanish flu. Spanish flu. Now, WHO, that is World Health Organization, declared COVID-19 as pandemic on the March 11th of 2020 because it has affected almost most of the countries
union territories and the international conventions. Though the disease started in the Wuhan city of China, but from Wuhan city it spread to the Italy, America, India, and many other countries and union territories and the international conventions. That's why the WHO declared it as a pandemic, Mahamari. So COVID-19 हमारे पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में, सर्वव्यापी महामारी के रूप में उभर कर आई है. Now it has affected the people worstly, and till June 25th, 2020, the total number of people affected globally was 94,18,699. Out of these affected people, the patients of COVID-19 who died is 4,91,012. But the people who recovered, that is positive side of this pandemic, is that people who recovered is 50,91,012. The worst affected beyond after China were Italy, then America, and now it's our country, India. And if we look at the COVID-19 statistics of India, it is the total number of people affected with the COVID-19 counts to 4,56,183 on the 25th June 2020. Total number of deaths occurred in the various states and the union territories are 2,58,684. The people who recovered from the COVID-19 amounts to 14,476. The worst affected states and UTs in India include Maharashtra and New Delhi. I told you earlier that coronavirus is the virus which is responsible for the spread of COVID-19, which is the disease. Basically, coronaviruses are zoonotic and were discovered in the 1960s. Zoonotic means that these viruses are transmitted between animals and people. Why we're calling it as the COVID-19 or COV-2? COVID-19 disease because it started in the 2019, and why the virus is called the COV-2 because it was COV-1 which was responsible for the SARS, that is severe acute respiratory syndrome. The symptoms of COVID-19 resemble to those of the SARS, that is severe acute respiratory syndrome. So that's why the coronavirus responsible for the COVID-19 is named as the SARS-CoV-2 or coronavirus 2. Why it is called coronavirus? Because it has crown-like projections on its surface. The common symptoms of the people who get affected with the CoV-2 or the coronavirus 2 include fatigue, आप थकावट महसूस करते हैं, sore throat, गला पक जाता है, fever, थोड़ा बुखार होता है, and difficulty in breathing, that is सांस लेने में परेशानी या मुश्किल. So basically, if a person become affected with the coronavirus, he feels, उसे लगता है थकावट महसूस होती है, गला पक जाता है, बुखार होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत या परेशानी होती है. Now, COVID-19 is a disease. COVID-19 is a disease and एक बीमारी है COVID-19 जो पूरे विश्व में महामारी के रूप में, सर्वव्यापी महामारी के रूप में उभर कर आई है.
There is a difference between the COVID positive, COVID negative, and the COVID-19 patient. COVID positive mean COVID positive. इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस 2 कोव 2 दाखिल हो गया है। अगर किसी पेशेंट या किसी व्यक्ति के शरीर में कोव 2 वायरस मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है। अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो शख्स, वो व्यक्ति, वो पेशेंट, वो मरीज कोविड-19 का मरीज बन गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव है बहुत से केसेस में जो कोरोना वायरस का काउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में उसका जो लोड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सो अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस मौजूद है तो वो कोविड पॉजिटिव है। मौजूद होने के बाद वो मरीज रिकवर कर गया, उसके शरीर से कोविड 2 के जो वायरस थे वो खत्म हो गए, तो इसका मतलब वो मरीज कोविड नेगेटिव है। लेकिन कुछ केसेस में, खास तौर अगर हमारे पास कोई ऐसा मरीज है कोविड या कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जो पहले से किसी बीमारी से उलझा हुआ है, जैसे कैंसर, डायबिटीज जिसको हम मधुमेह रोग बोलते हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट पेशेंट है, उच्च रक्तचाप या फिर हृदय रोग से पीड़ित है, या फिर बुजुर्ग है जिस केस में इम्यूनिटी कम हो गई है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, उस केस में देयर आर चांसेस, ऐसा होना संभव है कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव होने के बाद रिकवर कम कर पाए और कोविड-19 के मरीज बन जाएं, मतलब उस बीमारी से ग्रस्त हो जाएं जो बीमारी कोरोना वायरस कोव 2 की मौजूदगी के कारण हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोविड-19 का मरीज हो जाता है, बीमारी से पूरी तरह से ग्रस्त हो जाता है, तो उस केस में फेफड़ों में सूजन आ जाती है, या जो उसमें एल्यूलाई या जो थैलियां होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बदलाव होता है, एक्सचेंज होता है, वो रुक जाता है, तो पेशेंट में मरीज की मौत हो सकती है। कोविड-19 से हम लोगों ने, आई थिंक हमारी इस जनरेशन ने पहली बार एक ऐसा समय देखा जहां घर से बाहर निकलना वर्जित था, पूरी तरह वर्जित। तो नो वर्क फ्रॉम आउटसाइड, वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठे आप काम कर रहे हो, वो भी कुछ दिनों के बाद। कुछ आपको बाजार से नहीं मिल रहा है, एंड इट वाज इमीडिएटली प्रपोज्ड बाई मार्च 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लागू किया, और उसके बाद लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5। पहले 2 या 3 लॉकडाउन बहुत स्ट्रेस पैदा करने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को घर में रहने की, घरों से काम करने की, या जो घर में मौजूद था उसके साथ जीने की आदत हो गई। और लेकिन कुछ लोगों में इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर पाए, एंड दे बिकम स्ट्रेस्ड, एंड इन मैनी केसेस
many people who became positive with the COVID-19, they committed suicide. What I mean to say is कि जो स्ट्रेस था वो इतना बढ़ गया कि वो जिंदगी की जीने की जो एक सोच थी उसको वो छोड़ दिए. Now, friends, I would like to discuss what is stress. Stress है क्या? Stress is our body's way of responding to any kind of demand or threat. मतलब जब जिंदगी में कोई मुसीबत आती है तो हम उस मुसीबत से कैसे निपटते हैं. अगर हम उस मुसीबत को लाइफ में एक चैलेंज के रूप में लेते हैं तो इट इज द पॉजिटिव स्ट्रेस. लेकिन अगर किसी मुसीबत के आने से हम हिम्मत हार बैठते हैं, सोचते हैं ओह ये क्या हो गया, अब तो गए, अब नहीं जी सकते, व्हाट इज द हेल्थ दिस इज, यार क्या नर्क है जिंदगी, कैसे जिएंगे, कैसे निपटेंगे इससे, तो दैट इज द नेगेटिव स्ट्रेस. सो आई मीन स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव, स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव. उदाहरण के तौर पे आप अपने बारे में सोचिए. जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो कुछ लोगों ने ऑफ कोर्स इमीडिएटली तो ऐसे लगा कि क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया, सकारात्मक रूप में, और उन्होंने बहुत काम किया फॉर द फैमिली, academic work, even for the society. हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्राम ऑफिसर थे एनएसएस के, जो लोग लॉकडाउन में, जब कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन हुआ, वो घरों से अपने एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ निकले और उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, ऐसे मरीज जिनके पास दवाइयां नहीं थी या कुछ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का कोई साधन नहीं था, और उन लोगों ने, उन प्रोग्राम ऑफिसर ने उनका मदद की. दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे सफाई कर्मचारी, उन लोगों ने लॉकडाउन नहीं समझा. फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए ये एक समय था अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का, एंड दे प्रूव्ड इट कि दे आर द लाइफ सेवियर्स. वो भगवान का दूसरा रूप है और सच भी है. व्हाट इज, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है स्ट्रेस? यू नो, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. अकेलापन उसे खाता है. He is not in the habit of living alone because loneliness, अकेलापन या तो इंसान को खत्म कर देता है, खा जाता है, या बहुत से इंसान उस अकेलेपन को सकारात्मक रूप में लेते हैं और they do something constructive, कुछ ऐसा करते हैं जो उन अपने के लिए, परिवार के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, साबित होता है. सो दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स लाइक टू मीट पीपल. लोगों से मिलना उसकी रोजाना दिनचर्या का हिस्सा है, उसकी आदत है. हर शख्स चाहता है कि हफ्ते के आखिर में, चाहे वो शनिवार है या फिर रविवार है, कोई पार्टी हो. यार पार्टी चिल मारने के लिए,
They watch movies, they go to movies, they go out for dinners, they meet friends, they go for parties. Mean जिंदगी जीते हैं खुल के. But when we don't get to these things, लेकिन जब इंसान के पास कोई शख्स नहीं है बात करने के लिए, तो he feel isolated. वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, bored, and which makes us stressed and anxious. इसी बात से मिलती जुलती बात मैं आपको बताना चाहूंगा. मेरा नेफ्यू भतीजा और उसकी वाइफ बीवी दोनों बॉम्बे में जॉब करते हैं. They are working in the multinational companies and they were in Bombay till last Tuesday. लेकिन महाराष्ट्र के हालात खराब हुए और जब तक वो बॉम्बे में रहे उसी दिन से 22 मार्च से दे अवेल्ड वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना, घर में रहे. अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो दे यूज्ड टू रिंग द फोन पे बात करते थे, फोन पे कोई चीज मंगवा लेते थे. लेकिन वो जहां रहे थे उसी सोसाइटी से कोई जो वहां पे जिस वार्ड बॉय की ड्यूटी होती थी गेट कीपर की, वही सामान उनको घर पे डिलीवर करता था. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक वो एक जेल में थे और उनका कमरा जेल का एक सेल. जब वो पटियाला में आए तो मैंने पहले दिन उनसे मिला एंड दे वर होम क्वारंटाइंड. उनको घर में हमने ऊपर एक रूम दे दिया, कमरा दे दिया. तो आफ्टर 5 to 6 days I again met them. I visited my brother's place and I asked them how you are feeling, कैसा महसूस करते हो. तो I was shocked. मैं हिल गया अपने भतीजे की बात सुन के. युवराज है उसका नाम. तो युवराज ने कहा चाचा सिर्फ जो कैद का सेल था ना, कमरा था, बैरक था, वो बदल गया है, कैद तो अभी भी जारी है. So this was the state of mind of the people who were very busy while working from the home. उनके लिए घर एक जेल थी. And this must have stressed and anxious, I think, each and every individual from each and every country whosoever has faced the lockdown because of the COVID-19. Now, how to overcome this? ये तो COVID-19 था. हम लोग बहुत छोटी छोटी सी बातों से भी स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे? हमारे पास you can watch TV, we can go for movies from the Netflix, we can go to the Prime, and क्या नहीं है हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल. और आई थिंक, मैं सोचता हूँ हर शख्स के पास आजकल एंड्रॉयड फोन है, नेट है, और गूगल बाबा के पास जाओ, कुछ भी टाइप करो, वो आपके फोन पे आ जाएगा. एंड आई थिंक वी कैन have a change, we can enjoy, but only for some time. Because कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी देर नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखेंगे, कितनी देर. एंड नॉट फॉरगेटिंग द न्यूज. न्यूज चैनल पे एक बाढ़ आ गई. किन खबरों की? यही खबरें, उस देश में इतने लोग कोविड पॉजिटिव, उस देश में इतने लोग कोविड-19 से मर गए. कुछ ऐसे देश जिन लोगों ने पहले ही कब्रें खोदना शुरू कर दिया. देश में या देशों में क्या हुआ? अस्पताल कम पड़ गए. अगर मरीजों को वेंटिलेटर चाहिए तो वो वेंटिलेटर उनके पास मौजूद नहीं है. बहुत से ऐसे देश जहां लोग कोविड पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव होने के बाद कोविड-19 के मरीज बन गए, उनकी मौत हो गई, सड़कों पे गिर गए.
कोई शख्स ऐसा नहीं, कोई फैमिली मेंबर उन डेड बॉडीज को जलाने के लिए या दफनाने के लिए आगे नहीं आया। म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स या सफाई कर्मचारियों ने बहुत से दिनों तक उन लाशों को सड़कों से नहीं उठाया। और इन सभी खबरों ने आम आदमी में एक डर, एक स्ट्रेस छोड़ दिया, एंड many people became hysteric. So the question arises, how to deal with it? दोस्तों, मैं कहूंगा कि स्ट्रेस कोई भी हो, किसी भी वक्त हो, तो उसके लिए हर शख्स को अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब भी कोई मुसीबत हमारे सामने आती है तो हम लोग डर से ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगते हैं। ये हमारा जनरल रिएक्शन है। एक छोटी सी बात बताता हूं। घरों में अक्सर क्या होता है कि घर की औरत गैस पे कुछ बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल के उसको जला रही है। जलाने का मतलब उसको गर्म कर रही है। तो कुछ कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जिस घी या तेल में हम लोग अपना खाना बनाते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। और कई बार क्या होता है कि इतने ज्यादा उस तेल के वाष्प बनते हैं कि उन वाष्प को आग लग जाती है। तो क्या करते हैं हमारी घर की औरतें, वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लेकिन याद रखो कि जलने के लिए हमारे पास सबसे पहली जरूरत है एक पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज इग्नाइटेबल, जो ज्वलनशील है। दूसरा, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जहां पे उस ज्वलनशील पदार्थ को आग लग जाएगी। और तीसरा, आग लगने की सबसे जरूरत है, बड़ी जरूरत है ऑक्सीजन की। अगर हम क्या करें, अगर हम जनरली क्या करते हैं कि बहुत से लोग उसमें पानी डाल देते हैं, तो पानी का उल्ट से वाष्प बनता है। तो बहुत से केसेस में जो वाष्प है गरम, वो तेल उसके साथ वाष्प बन के हमारे मुंह पे गिर जाता है और हम लोग जल जाते हैं। या फिर क्या करते हैं कि कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, उसको कढ़ाई को उल्टा देते हैं, गैस बंद नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे बिकम पैनिकी, दे बिकम स्ट्रेस्ड। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक सूखा हुआ ढक्कन लेना है और उस कढ़ाई को उस ढक्कन के साथ ढक देना है। जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी तो तेल का जलना अपने आप बंद हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू कंट्रोल इमोशंस। अपनी भावनाओं को हमने कंट्रोल करना है और किसी भी सिचुएशन को हमने बहादुरी के साथ फेस करना है। तो वी आर नॉट टू क्या नहीं करना, हमें रेक्ट नहीं करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट, देन आफ्टर सेटिंग वी हैव टू रेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं स्ट्रेस से निजात पाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट हैव द प्रॉपर स्लीप। सोने के लिए हमारा एक सही वक्त, हमें एक वक्त निर्धारित करना है और कम से कम 8 घंटे जरूर सोना है, चैन की नींद सोना है। वी मस्ट हैव ए साउंड स्लीप। एंड जो जिस वक्त पे हम रोज सो रहे हैं और जिस वक्त पे उठ रहे हैं, वही हमने रूटीन फॉलो करना है। लॉकडाउन में क्या हुआ, अगर हम बच्चों की बात करें, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, हमारे साथ जो लोगों को घर से काम करना था लेकिन कोई समय नहीं था काम करने का, उनके ना सोने का कोई वक्त था और ना जागने का। और शायद अभी तक भी ऐसा रूटीन नहीं बन पाया। नो,
we have to follow a proper sleep routine. Keep talking. यार बात करो, किससे? अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपनी समस्याओं को साझा करो। किससे? अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। मजा करो, किसके साथ? दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। मजाक करो, किसके साथ? दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। क्या होगा ऐसे करने से? अरे दोस्तों, शायद किसी समस्या का समाधान ना मिले, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जरूर है कि हम लोगों का जो उस समस्या से बोझ है वो जरूर कम हो जाएगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक शख्स था, उसके बाद कोई शख्स नहीं था बात करने के लिए। तो वो किसी अपने दोस्त से मिला। उसने कहा, मैं बहुत समस्या में हूं, मेरी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मैं अब उस समस्या को और झेल नहीं सकता। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार वक्त बहुत कम है मेरे पास। हाँ, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, एक काम करो कि अपना मुंह दीवार की तरफ कर लो, आंखें बंद कर लो और आपकी जो समस्या है, जो आपको तंग कर रहा है, वो सारी समस्या उस दीवार के आगे उगल दो। कहते हैं कि जब उस व्यक्ति ने, जिस समस्या थी, जो स्ट्रेस में था, जिसके पास कोई शख्स नहीं था जो उस अपने दोस्त के साथ या परिवार के सदस्य के साथ अपनी समस्या को साझा कर सकता, तो उसने अपने दोस्त पे विश्वास किया और विश्वास करके खड़ा हो गया, दीवार की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर ली और अपनी समस्या को उगलने लगा। कहते हैं कि कुछ देर के बाद जब उसकी समस्या बाहर आ गई तो वो दीवार काली हो गई। दिस इज सिंबॉलिक। दोस्तों, सच में अगर आप अपनी समस्या को अपने दोस्त के साथ या अपने किसी परिवार के साथ सदस्य के साथ शेयर करते हो, साझा करते हो सकता है आपको उस समस्या का समाधान मिल जाए। किसी कारण आपको समस्या का समाधान नहीं भी मिला तो दोस्तों, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं आपको कि समाधान ना मिले, लेकिन आपका बोझ जो है उस समस्या के कारण वो जरूर कम हो जाएगा। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक बात, से नो टू न्यूज। कहते हैं जैसा हम सुनते हैं वैसी मनोस्थिति होती है हमारे मन की, वैसी ही हमारी मनोस्थिति होती है। अगर हम अच्छा सुनेंगे तो हमारा दिल अच्छा होगा, खुश होगा, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और अगर हम लोग बहुत बुरा 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 सुन रहे हैं तो हमारे मन पे बोझ होगा, हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड और बहुत बुरा महसूस करेंगे। तो से नो टू न्यूज, खबरों को मत सुनिए। सुनिए यार, लेकिन क्यों हम लोग 24 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे जब हम जाग रहे हैं, जब हम सो नहीं रहे हैं, तो न्यूज चैनल्स पे बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, और वो भी कोविड-19 के बारे में। और वो क्या कि इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई टीका अभी तक मिल नहीं पाया, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लाखों में लोग मर रहे हैं। बहुत से देशों में जो वहां की जमीन है वो शमशान में तब्दील हो गई है। सो नो अननेसेसरली कंजम्पशन ऑफ कोविड-19 न्यूज। क्यों क्यों सुने हम इस न्यूज को? यार दूसरा आपके पास एक और पक्ष है इसका कि आप सोशल मीडिया को, न्यूज चैनल्स को, टीवी को हम लोग अपने आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हम लोग इसका उपयोग करें। So our perceptions of frequency of negative events like contracting the virus are heavily influenced by what we see and read in the news. आप एक
एक्सेस करके देखना घर पे इस टॉक के बाद। जब फ्री हो तो आप कोई बीमारी के बारे में सोचना और उस बीमारी के सिम्टम्स को, लक्षणों को आप लोग गूगल पे जाके सर्च करना। आप हैरान हो गए कि यार राजीव ने ये क्या बता दिया। सच में दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी के लक्षणों के सिम्टम्स के बारे में बार बार पढ़ोगे तो एक वक्त के बाद आपको लगने लगेगा कि शायद आप इस बीमारी से ग्रस्त हो। सो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अगर आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है। टेक ब्रेक्स फ्रॉम ई डिवाइसेस। हम लोग घरों में रह रहे हैं, जस्ट वेट। दोस्तों घरों में रह रहे हैं, काम घर से कर रहे हैं। आई थिंक वी टीचर्स हैव टेकन क्लासेस, ई ऑनलाइन क्लासेस, एंड वेरी बिजी इन, बहुत मशरूफ थे लेक्चर को तैयार करने में, लेक्चर को डिलीवर करने में। सो जब फ्री हुए तो क्या करते हैं, मेल चेक कर ली, मेल का जवाब दे दिया, व्हाट्सएप देख लिया। सो व्हाट आई मीन टू से इज, जो हमारे पास ये मोबाइल के अलावा भी ई डिवाइसेस है, जैसे हमारे पास पीसी है या कोई टैब है ना। वी मस्ट टेक ब्रेक फ्रॉम दोज ई डिवाइसेस, बिकॉज कुछ वक्त निकाले हम अपने परिवार के साथ बैठने का, परिवार से बात करने का और दोस्तों से बात करने का। Now listen, the thing is how to be happy during this period. Now before starting or discussing this part, एक छोटी सी कहानी दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं अपने देश के राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ और महाराष्ट्र राज्य के स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ। तो हम लोगों की या आप लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए। यू नो, मोटो ऑफ एनएसएस इज नॉट मी बट यू, मैं नहीं तू। मतलब हम एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स या विद्यार्थी भलाई ऑफिसर्स, अफसरों को कैसे एक्ट करना है, कैसे सोचना है और क्या करना है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था और उस गांव का जो मुखिया था वो बहुत मूर्ख इंसान था। लेकिन उसी गांव के 5 लोग ऐसे थे जो कि बहुत समझदार थे। तो उस गांव के किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आती तो वो कभी राजा या मुखिया के पास नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये इस बात का ज्ञान था कि हमारे गांव का मुखिया बहुत मूर्ख है और वो हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। तो वो उस गांव के व्यक्ति जिसको कोई मुसीबत होती, कुछ समस्या होती, तो अपने गांव के उन 5 लोगों के पास जाते जो लोग बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन उस गांव के मुखिया को उन 5 बुद्धिमान व्यक्तियों से बहुत गुस्सा था कि वो सोचता कि जब तक ये 5 व्यक्ति मेरे गांव में रह रहे हैं, मेरा तो कहीं कोई वजूद ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव के मूर्ख मुखिया ने एक घास फूस का कच्चा घर बनाया और उन 5 बुद्धिमान व्यक्तियों को उस घर में कैद कर दिया। गांव के लोगों को इस बारे में पता चला कि हमारे गांव के मूर्ख
मुखिया ने हमारे 5 बुद्धिमान भाइयों को एक घास फूस के कच्चे घर में कैद कर दिया है, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो सब लोग उस गांव के मुखिया से डरते थे। थोड़ी देर बाद उस गांव के मूर्ख मुखिया ने उस घर को आग लगा दी। गांव के सभी रहने वालों को इस बात का पता चला कि मुखिया ने उस घर को आग लगा दी है, लेकिन कोई व्यक्ति, गांव का कोई भी रहने वाला उन लोगों की मदद करने नहीं आया, क्योंकि सब लोग उस मूर्ख मुखिया से डरते थे और सबने सोचा हमें क्या, हाउ डज इट मैटर टू अस। लेकिन हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, हम लोग बहुत सेल्फिश हैं, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो लेकिन क्या हुआ, एक नन्ही सी चिड़िया ने इस सारी घटना को देखा। वो बहुत दूर एक तालाब पे जाती, अपनी छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी भर के ले आती और लाकर उस आग में डाल देती। सुबह से शाम हो गई, ना वो चिड़िया रुकी और ना आग बुझी। उसी तालाब के किनारे एक योगी बैठा तपस्या कर रहा था। तो उसने चिड़िया से पूछा कि पगली, तुझे क्या हो गया? तू आती है, अपनी छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी ले जाती है और फिर आ जाती है। तो उस योगी की बात सुन के उस चिड़िया ने सारा वृतांत उस योगी को सुनाया और उसने कहा कि मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूं उस आग को बुझाने की। तो उस नन्ही चिड़िया की बात सुन के, उस नन्ही चिड़िया का जवाब सुन के वो योगी मुस्कुराने लगा और उसने कहा, पगली, तेरी इन 2 बूंदों से क्या आग बुझ जाएगी? तो योगी की बात सुनकर उस नन्ही चिड़िया ने कहा, शायद नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं जब कयामत के रोज मैं उस खुदा के घर में जाऊं तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं उसका नतीजा अभी वो अच्छा हो जाए, आज नहीं तो कल उसका नतीजा अच्छा जरूर होगा और उसका फल भी हमें जरूर मिलेगा। तो आई थिंक दिस द वे, ये एक तरीका है हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों व विद्यार्थी भलाई ऑफिसर्स के काम करने का या सोचने का। तो दोस्तों, नाउ आई वुड लाइक टू कंटिन्यू कि खुश रहना कैसे है। आप में ऐसा कोई है जो खुश है, जिसे कोई समस्या नहीं है, जिसे कोई तकलीफ नहीं है, जो अपने परिवार से, अपने कॉलेज के माहौल से, अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से पूरी तरह संतुष्ट या खुश है? तो शायद नहीं, और अगर है तो वो भी ना के बराबर है। तो दोस्तों, कैसे खुश रखना है अपने आप को? यू नो, पास्ट इज हिस्ट्री। जो समय बीत चुका है वो इतिहास है। फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो आने वाला समय है वो एक बुझारत है। किसी को कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। शायद 21 मार्च तक किसी को ये नहीं पता था कि 22 मार्च को पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री के आदेश से जनता कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सुन रहे थे दिसंबर 1919 से 2019 से, पिछले साल के दिसंबर से, कि चीन में इतने लोग कोविड-19 से मौत के मुंह में चले गए। इटली में इतने लोग कोविड-19 की वजह से मौत के मुंह में चले गए। इतने लोग अमेरिका में, जो शायद पूरे विश्व की सबसे मजबूत शक्ति है, सबसे शक्तिशाली देश है, वहां पे
कोविड-19 ने ऐसी त्राही मचाई हुई है और वही मंजर हमारे देश में भी होगा। सो दोस्तों, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। जो पल है, जो ये पल है, यही जीवन है। इस पल को खुद के जियो, एंजॉय इट। जीवन एक उत्सव है, इसे मनाएं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, हर साल हम लोग दिवाली मनाते हैं। दिवाली वाले दिन मिठाई बनाते हैं, मिठाई एक्सचेंज करते हैं, अपने दोस्तों के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, खुशियां मनाते हैं, घरों की सफाई करते हैं, दिए जलाते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि आज दिवाली है? यार, कैलेंडर में एक लाल रंग की डेट होती है, तारीख होती है, उसके नीचे लिखा होता है दिवाली, एंड वी सेलिब्रेट दिवाली। तो दोस्तों, क्यों हर रोज हम लोग दिवाली नहीं मना सकते? ना मनाओ दिवाली यार, कम से कम खुश तो रह सकते हैं। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, जीवन एक उत्सव है, इसे मनाएं, खुल के जिए हर पल को। क्यों? क्योंकि जो ये पल है, बस यही जिंदगी है। एक्सेप्टेंस मेक्स यू कंफर्टेबल। दोस्तों, अगर हम एक आदत डाल लें उस चीज को एक्सेप्ट करने की, चाहे वो व्यक्ति है या फिर कोई सिचुएशन जो हमें तंग कर रही है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते, तो कम से कम हम लोग शांत तो हो सकते हैं ना, ये सोच के कि इसमें बदलाव संभव नहीं। इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट। सो मैं कहूंगा कि शायद ही बहुत से कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो पति अपनी पत्नियों से बहुत खुश हैं, या पत्नी अपने पति से, या पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत खुश हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स से। बट वेयर इज अ प्रॉब्लम? no person, no male can change his wife, and no wife can change her husband. कोई बच्चा अपने माँ बाप को बदल नहीं सकता, और कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं। So what's the way to be happy? Accept the people and situation as they are. Try to change it, but if you can't change, better to accept it. Always hold the remote control of yourself in your own hand. हम लोगों ने, हमारे लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, कौन नियंत्रण कर रहा है? लोग। क्यों? क्योंकि अक्सर हम लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी को नियंत्रण करने का मौका ना दे। मैं एक उदाहरण देता हूं। आजकल क्या है कि हर शख्स, अगर किसी महिला की बात करूं, तो वो 8-10 दुकानें घूमकर अपने लिए साड़ी या सूट खरीद के लाती है, बेस्ट डिजाइनर से या दर्जी से उसको बनवाती है। यही मेल्स के साथ है। हम लोग बेस्ट ब्रांडेड शर्ट्स खरीदते हैं, पैंट्स खरीदते हैं, और मान लो हम लोग बहुत शौक से खरीदा और पहले दिन अपने कॉलेज में पहन के गए, तो हमारे ही एक दोस्त ने ये कह दिया कि यार क्या पहन के आए हो या आई हो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप दोबारा वही ड्रेस पहन के कॉलेज जाओगे? शायद नहीं। अरे यार, सोचो कि बेस्ट डिजाइन, बेस्ट कलर, बेस्ट दर्जी से हमने तैयार कराया, बेस्ट ब्रांडेड शर्ट हमने खरीदी, लेकिन हमारे दोस्त ने कह दिया क्या पहने हो, तो हमने उसको पहनना ही छोड़ दिया। तो कहाँ हम लोग अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं या नहीं लोगों के लिए? अरे यार, अपने लिए जियो, लोगों के लिए भी जियो, लोगों को खुशी देने के लिए, लेकिन अपनी खुशी पहले। नाउ, हाउ टू स्टार्ट एंड द डे। हम लोगों के पास, आई थिंक लॉकडाउन से पहले हम क्या कहते थे कि यार वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। किसके पास अगर किसी चीज की कमी थी
तो सबसे पहली चीज थी वक्त की। मनी, पैसा, काम बाद में आता था। क्या नहीं था? वक्त नहीं था। लेकिन लॉकडाउन में हमने क्या सीखा कि शायद जो सबसे ज्यादा हमारे पास है वो वक्त ही है, लेकिन हम लोग उस वक्त का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, दोस्तों, स्टार्ट योर डे विद द प्रेयर। अपना दिन शुरू करिए उस परम पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना करके कि हे भगवान, आपने मुझे एक और दिन दिया है जीने का। मैं इस दिन को ऐसे गुजारूं कि मेरा दिन सार्थक हो सके, मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी समाज के लिए। एंड एंड द डे विद प्रेयर। रात को सोने से पहले उस परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपने मुझे ये जो दिन दिया था उसको मैंने अपनी शक्ति से अनुसार अच्छे ढंग से जीने का पूर्ण प्रयास किया है और मैंने कोशिश की है कि मैं ये दिन अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज में रहने वाले लोगों को खुशी देने में लगा सकूं, और मैं इसके लिए आपका धन्यवादी। अरे याद करो, जब भी हम लोग किसी को छू जाते हैं गलती से, या गलती से किसी का पैर हमने दबा दिया, किसी से टक्कर आ गए, तो हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, माफ कीजिए। अरे सुबह से लेके शाम तक इस धरती माता को अपने पैरों से सैकड़ों नहीं लाखों बार रोंदते हैं, कभी सॉरी बोला है? नहीं। ये जो मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल, इसमें हम लोग पैसे देके डाटा कार्ड दिलवाते हैं, टीवी में पैसे देके कार्ड दिलवाते हैं, और पैसे देते वक्त धन्यवाद भी करते हैं उस शख्स का जिसको हम पैसे देके कार्ड डलवा रहे हैं। हमारे घर में बिजली आ रही है, हर महीने बाद 2 महीने बाद बिजली का बिल आता है, बिल पे करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन वो सूरज, वो सूर्य देवता हमें करोड़ों सालों से, जब से इस पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जब से यहाँ जीवन उत्पन्न हुआ है, हमें रोशनी दे रहा है। उसी रोशनी से पौधे, हरे पौधे क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाते हैं हमारे लिए और इस धरती पे रह रहे दूसरे जीवों के लिए। कभी हमने उस सूर्य का धन्यवाद किया है? कभी नहीं। सो बी थैंकफुल, बी थैंकफुल टू whom? टू द अर्थ, भूमि के लिए जो जिसमें से हमें अनाज मिलता है, उस सूर्य के लिए जिसके कारण ये जीवन संभव है इस पृथ्वी पे। धन्यवाद करो किसका? अपने घर में उस महिला का जो आपके लिए खाना बना रही है, उस पिता का जो आपके लिए पैसा कमा रहा है, राशन, सब्जी, फल लेके आ रहा है आपके खाने के लिए। नाउ इज वेरी स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। दोस्तों, एक छोटा सा अभ्यास आपके लिए। रीड इट स्लोली, धीरे धीरे पढ़िए, और पढ़ने के लिए सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है। इट इज, आई थिंक, आपने क्या पढ़ा? बहुत से लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है। लेकिन हम तो कब से सुनते आ रहे हैं ना कि भगवान कण कण में है। एंड इफ यू, बहुत कम लोगों ने, मेरे बहुत कम दोस्तों ने ये पढ़ा, गॉड इज नाउ हियर, भगवान यहां है, भगवान यहां है। सो फ्रेंड्स, लाइफ डिपेंड्स ऑन द वे वी लुक।
जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हमारा जीवन। What I mean to say is, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा ही होगा। कहते हैं आज को अच्छा रखो, वर्तमान को अच्छा रखो। दोस्तों, जिसका आज अच्छा है, यही वर्तमान, जिसका वर्तमान अच्छा है, यही वर्तमान कल को आपका भूतकाल होने वाला है, पास्ट हो जाएगा। जिसका प्रेजेंट अच्छा है, जिसका वर्तमान अच्छा है, उसका भूतकाल कभी खराब हो ही नहीं सकता। मतलब जिसका प्रेजेंट अच्छा है, उसका पास्ट भी अच्छा ही होगा, और जिसका पास्ट अच्छा है, जिसका प्रेजेंट अच्छा है, जिसका भूतकाल अच्छा है, जिसका वर्तमान अच्छा है, उसका भविष्य अच्छा ही होगा। मतलब जिसका वर्तमान अच्छा है, उसका भूतकाल अच्छा होगा, और जिसका भूतकाल अच्छा था, जिसका वर्तमान वर्तमान अच्छा है, उसका भविष्य अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, बी हैप्पी, खुश रहो। थैंक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो जिसने हमें ये जीवन दिया है। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो फॉर योर पोजीशंस, उन सबको चीजें के लिए जो हमारे पास है। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक लड़का अपने पिता से गुस्से होकर लड़कर चला गया कि आप मुझे नए जूते नहीं दिलवाते। लेकिन घर से बहुत थोड़ी दूरी पे निकला तो उसने एक ऐसा शख्स देखा जिसके पास जूते ही नहीं थे। तो वो बेटा, वो व्यक्ति वापस आ गया और अपने पिता के पांव में पड़ गया और उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे एक नई जोड़ी जूतों के लिए बदतमीजी की। मुझे तो आज ज्ञात हुआ कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे पास पैर तो हैं, जूते नहीं नए तो क्या हुआ। सो दोस्तों, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं, नो रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना नहीं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे ये दो। जस्ट बी थैंकफुल, सिर्फ धन्यवाद करो उस भगवान का, हर उस शख्स का जिससे हमें कुछ मिल रहा है, हर उस वस्तु का जो हमें आनंद दे रही है, नेचर का, प्रकृति का, जस्ट टू बी लाइफ, जिंदा रहने के लिए। So thank you very much. But before this, I would like to tell you a smart story. बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि यार पता नहीं क्या नया इसने किया, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो एक छोटी सी कहानी अंत में। दोस्तों, एक शहर में एक व्यक्ति था जो लकड़ी का व्यापार करता था, और उसके पास एक मजदूर काम करता था, और उसकी पगार थी 5,000 रुपये प्रति माह। और वो करता क्या था, हर रोज जंगल में जाता और अपनी कुल्हाड़ी से 5 पेड़ काट कर लेके आता। 4 साल बीत गए, हर रोज वो जंगल में जाता, 4 पेड़ काट के लेके आता, और उसका मालिक उसको 5,000 रुपये प्रति माह पगार देता। तभी एक और मजदूर उसके मालिक के पास आया, तो उसने कहा मुझे भी काम चाहिए। तो उसके मालिक ने कहा कि मेरे पास तो एक ही काम है कि जंगल से पेड़ काट के लेके आने। तो उसने कहा ठीक है। वो पहले दिन गया तो उसने 4 की जगह 8 पेड़ काटे, और यही सिलसिला पूरा महीना चलता रहा। जो पुराना मजदूर था वो एक दिन में 4 पेड़ काटता, और जो नया मजदूर था वो एक दिन में 8 पेड़ काटता। तो जब महीने के अंत में पगार देने का वक्त आया तो मालिक ने अपने पुराने मजदूर को पहले की तरह 5,000 रुपये पगार दी, और नए मजदूर को 10,000। ये देख के पुराना मजदूर बहुत दुखी हुआ, और उसने मालिक से कहा कि मालिक, मैं पिछले 4 साल से आपके पास काम कर रहा हूँ और आप मुझे 5,000 रुपये पगार दे रहे हो। ये व्यक्ति सिर्फ 1 महीना पहले यहाँ आया है और आपने इसको 10,000 रुपये पगार दी है। तो उसकी बात सुनकर मालिक ने कहा कि कल तुम दोनों एक साथ एक ही जंगल में जाना, लेकिन जो नया वाला है वो पेड़ काटेगा, और पहले वाला तुम सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि ये क्या करता है।
तो ऐसा ही उन दोनों ने किया। जब अगले दिन वो वापस आए तो पहले मजदूर ने कहा कि मालिक, मैंने आज यही देखा कि ये क्या करता है। करता ये भी वही है जो मैं करता हूँ, मैं भी पेड़ काटता हूँ, ये भी पेड़ काटता है, लेकिन मैं एक पेड़ काटने के बाद सुस्ताने के लिए बैठ जाता हूँ क्योंकि थक जाता हूँ। और मेरा दोस्त भी पेड़ काट काट के थक जाता है, लेकिन जब वो सुस्ताने के लिए बैठता है तो बैठे बैठे वो अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसटते रहता है और तेज करता रहता है। तो दोस्तों, लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। पूरा जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमें भी हमेशा अपनी स्किल्स, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हैं चाहे हार्ड, उनको शार्पन करने के लिए, तेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड यही मैंने आपको के साथ साझा किया कि हाउ वी कैन शार्पन अवर स्किल्स, हाउ वी कैन ओवरकम अवर स्ट्रेस, कैसे हम अपने स्ट्रेस के ऊपर जीत पा सकते हैं और सोसाइटी के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। अगर हम खुश हैं तो परिवार खुश है, परिवार खुश है तो समाज खुश है, समाज खुश है तो देश खुश है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। सभी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स का, सभी स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर्स का तहे दिलो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर वीबी गायकवाड, KTHM कॉलेज नासिक, डॉक्टर राजेंद्र गुंजल, कोऑर्डिनेटर FDP, डॉक्टर गणेश मोगल, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर FDP, एंड मेरा दोस्त गोरक्षनाथ पिंगले, जिसने मुझे एक मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस सभी स्लाइड्स पर दिया हुआ था, मैं बोल देता हूँ। इट इज शर्मा, SHARMA, राजीव, SHARMA RAJEEV 0379 @gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर है 8360339177, 8360339177। So thank you, Vince, and thank you very